और अब बात करते हैं खबरों की। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन से करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे और इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। The center-state relations will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें discussion करिए, detailed discussion करिए, detailed चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को address करके आगे बढ़ेंगे. There will be good positive implication, economic implication because of this decision. And we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report. Report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you will come to know that there is an appointed date. So once that process completes, process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who's saying that it because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047. Whatever needs to be done will be done, and this is one of those major decisions where, as I said, सर्वसम्मति से. सर्वसम्मति means everybody is on board. Absolutely, मैं एकदम clearly आपको कहना चाहूँगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है. We believe in continuously taking feedback. मैंने आपको कई examples पहले भी दिए हैं. We believe that we must take people's opinion in mind, into consideration, and then decide. So we definitely believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feedback. कार्य के साथ प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने इसका वादा किया था, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। बिल्कुल, जो ही देखिए, जब चुनाव के पहले जो सरकार ने इस बार बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि वो अगर मैंडेट में आते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लेकर आएंगे, और इसको लेकर पहले से ही तैयारियां जो है वो चल रही हैं। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, और कहा गया था कि वो कमेटी बिंदुओं पर विचार करे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू किया जा सकता है, क्या कुछ उसके पहलू रहेंगे, क्या कुछ उसमें तकनीकी समस्याएं रहेंगी, और क्या कुछ कानूनी प्रावधान रहेंगे। और उसको लेकर एक ये पूरी कमेटी जो थी वो गठित करी गई थी।
जिसमें सभी विषय वर्ग के जो विशेषज्ञ थे वो उसमें शामिल हुए थे। उन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी थी और उस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा था और उसको आज कैबिनेट के अंदर रखा गया और कैबिनेट ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसने इसको मंजूरी दे दी है। अब माना जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करते हुए, हालांकि इसमें भी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन होने जा रहा है देश के लिए और बहुत बड़ा एक परिवर्तन जो है वो इसके बाद देखने को मिलेगा। इसके जब ये लागू हो जाएगा तो उसके बाद लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ में होंगे और उसके एक साल के अंदर 100 दिन के अंदर जो है वो निकाय के चुनाव भी जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सभी चीजें जो है साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा डिसीजन है और माना जा रहा है कि आज एक बड़ा फैसला जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है। बिल्कुल प्रियम, बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरीके से हम देखें वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरीके से जब से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है लगातार इस पर सियासत भी देखी जा रही है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग जो दल हैं उनसे सामने आ रहे हैं। और वही दिल्ली से बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मैंने वन नेशन वन इलेक्शन का लगातार विरोध किया, यह एक समस्या की तलाश में एक समाधान है। मोदी और शाह के लिए एकाधिक चुनाव समस्याएं, बार बार चुनाव से लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार होता है, तो ये ओवैसी ने जो है पलटवार किया है और अब जो है इस पर सियासी पारा जो है हाई होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली से यह जानकारी, वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसमें उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा से इस प्रस्ताव का विरोध किया है। और प्रियम लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रियम, जिस तरीके से जब से ये प्रस्ताव पास हुआ है लगातार जो है बयार सियासी बयार बह रही है, कुछ और ही कह रही है और अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना जो बयान है वो दिया है, वो कह रहे हैं कि लगातार मैंने इसका जो है विरोध किया है। बिल्कुल जूही, देखिए दोनों ही तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो इसके बाद में देखने को मिल रही है। एक बड़ा तबका, एक बड़ा ऐसा हिस्सा है जो इसका कहीं ना कहीं खुले मन से जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और मानना है कि आने वाले समय में इसके जरिए देश की बेहतरी के लिए जो है वो एक अहम और निर्णायक फैसला जो है वो साबित होगा। क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के जो विधानसभा के चुनाव है वो चला करते हैं और उस वजह से चुनावी माहौल जो है बना रहता है और सरकारें जो है वो इलेक्शन मोड में रहती हैं बजाय काम करने के मोड में। तो उसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर होता है और इसका साफ तौर पर एक आर्थिक रूप से भी देश को प्रदेश को जो है इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में उस खर्चे को कम किया जा सके, क्योंकि चुनाव में एक बड़ी धनराशि जो है वो लगती है, मैन पावर यूज होती है, सरकार का जो सरकारी तंत्र है उसका विशेष तौर पर प्रयोग होता है। तो उन सभी चीजों को कैसे बचाया जा सके, इसको लेकर जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लाया जा रहा है। हालांकि एक वर्ग जरूर ऐसा है जो इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और उसमें अगर आप देखें तो विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर अन्य जो नेता हैं, उनकी तरफ से देखें तो साफ तौर पर इसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि लंबे समय से इसका वो विरोध करते रहे हैं और ये अगर आएगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जो उनके अधिकार हैं, विपक्ष के जो अधिकार हैं, उनको जो है खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, तो इस पर अब सियासत जो है लगातार बढ़ती हुई जा रही है और हालांकि अब इसका क्या कुछ आगे जो है प्रक्रिया होने वाला ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही। योगी सरकार की नायाब पहल, फलों सब्जियों की उपज बढ़ाने को लेकर पहल। हाईटेक पौधशालाओं में वाजिब दाम पर मिलेंगे निरोग गुणवत्ता के पौधे। अब तक तैयार हो चुकी है 36 हाईटेक पौधशालाएं। तो ये जानकारी सामने आ रही। लखनऊ से फलों सब्जियों की खेती से रोजगार के साथ पोषण की सुरक्षा भी मिलेगी। तो ये जानकारी योगी सरकार की एक नायाब पहल फलों सब्जियों की खेती को लेकर और बताते चले कि अब तक 36 हाईटेक पौधशालाएं जो है वो तैयार हो चुकी है अलग अलग जगहों पर और वाजिब दाम पर जो है अब ये उपलब्ध हो सकेंगे। और सरकार की ओर से ये अच्छी पहल है। बात करें तो जिस तरीके से फलों और सब्जियों की उपज को लेकर जो है उसको बढ़ाने के लिए ये पहल सरकार की ओर से शुरू की जा रही है। हाईटेक पौधशालाओं में वाजिब दाम पर जो है ये मिल सकेंगे और निरोग गुणवत्ता के पौधे जो है अब तक बात करें तो 36 हाईटेक पौधशालाएं भी तैयार कर लिए गए हैं और फलों सब्जियों की खेती से रोजगार के साथ पोषण सुरक्षा भी मिलेगी। तो योगी सरकार की एक प्रमुख पहल कह सकते हैं और हाईटेक पौधशालाएं जो है सरकार की ओर से तैयार कराए जा रहे हैं।
और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने रोजगार मेले का उद्घाटन किया और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और औरंगजेब की आत्मा आ गई है उनमें, और सपा सरकार में माफियाओं का बोलबाला था और ये साधु संतों को माफिया कहते हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा। लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पर चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांदड़ा से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी, और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, ये गुंडागिर्दी और अराजकता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब भारत के युवाओं के लिए नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं के सपनों को
साकार करने के लिए इस प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार के एक बृहद अभियान को अपने हाथों में लिया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने अपने इन युवाओं के लिए नए सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देकर के यूपी में पहली बार 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव आए, और इनमें तेजी के साथ जमीनी धरातल पर उतरना प्रारंभ हुआ है। आज परिणाम है ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब लगभग 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।